السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت تو یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو کل ہم نے ٹیبل کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، ہم نے لے آؤٹ سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم جائیں گے لے آؤٹ میں جو کچھ باقی تھا، ہم سے جو ہے نا رہ گیا تھا، وہ ہم جو ہے نا پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ کر تمہارے پاس ٹیبل یہاں سے بھی آ سکتا ہے، اور یہاں سے آپ ڈیٹا گیون کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے 10 لکھ دیتا ہوں کہ مجھے 10 کلم چاہیے، اور یہاں سے میں 10 لکھ دیتا ہوں، اور 10 رو جو ہے نا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر کلک کر کے ہمارے پاس یہ ٹیبل آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی میں نے یہ ٹیبل کی جو ہے ڈیٹا ہے نا گیون کی، ٹیبل ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب جی ہم جائیں گے لے آؤٹ کی طرف، اور لے آؤٹ میں جو ہے نا ہمیں پچھلے لیکچر نمبر 8 میں ہم نے جو ہے نا یہاں تک کا ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک انسرٹ رائٹ تک، ٹھیک ہے؟ آج ہم ہے نا مرج سیل یہ دکھائیں گے کہ مرج سیل کی فنکشن کیا ہوتا ہے، اور مرج سیل کس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو، مرج کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے جو ہے نا اس طرح اس کی سلیکشن کر دی، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا ہمارے پاس مرج سیل کا جو ریبن تھا وہ اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس پر کلک کر کے دیکھو، ہمارے پاس جو ہے نا سارے سیل جتنے ہم نے سلیکٹ کیے تھے وہ اب کیا ہو چکے ہیں، مرج ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرج، ٹھیک ہے؟ مرج کی مطلب اکٹھا ایک سیل بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بڑا سیل بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے مرج سیل کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسے کنٹرول زیڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ہم جو ہے نا اس سارے کالم کو سلیکٹ کیا ہم نے، مرج سیل پر کلک کر کے ہمارے پاس یہ دیکھو مرج ہو گیا، ایک سیل بن گیا، ٹھیک ہے؟ ہم کنٹرول زیڈ کر دیتے ہیں، کنٹرول زیڈ کا مطلب انڈو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسپلٹ سیل۔ فار ایگزامپل ہم نے مرج کی، اب دیکھو ہم نے کیا گیا مرج کیا، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہم یہاں پر اسپلٹ سیل پر کلک کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا مانگتا ہے کہ ڈیٹا مجھے گیون کرو، ٹھیک ہے؟ تو کلم جو ہے نا، کلم کو ہم ایک رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ کلم ایک ہی، ٹھیک ہے؟ اور روز کو جو ہے نا ہم فار ایگزامپل 10 دیتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، 10 روز چاہیے، 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ 10، یہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے نا 10 روز بن چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کلم ہم نے ایک ایڈ کیا تھا۔ فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو مرج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس پر اسپلٹ سیل پر کلک کر کے ہم جو ہے نا اس کو کلم 2 ایسا ہے، 2 ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور رو جو ہے نا ہم بڑھا دیتے ہیں 5 کو، ہم 5 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے ڈیٹا کے مطابق دیکھو ہمارے پاس 2 کلم بن چکے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، اور 5 رو جو ہے نا آ چکے ہیں، 1 2 3 4 5، یہ ہمارے پاس 5 رو آ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا ہم دوبارہ لے آؤٹ کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرج اور اسپلٹ سیلز کا یہ فنکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے اسپلٹ ٹیبل۔ اسپلٹ ٹیبل کا مطلب یہ ہے، فار ایگزامپل ہم اسے انڈو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انڈو، کنٹرول زیڈ سے۔ اب جو ہے نا ہمارے پاس اسپلٹ ٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے کوئی ڈیٹا گیون کی ہے یہاں پر اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیبل جو ہے نا آپس میں اسپلٹ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس کو جو ہے نا علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، اس پورشن کو علیحدہ کرنا ہے، اس پورشن کو علیحدہ کرنا ہے، تو ہم نے یہاں پر کلک کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر اسپلٹ ٹیبل پر کلک کر کے جو ہے نا ہمارے پاس 2 ٹیبل جو ہے نا بن چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اسپلٹ ٹیبل، ٹھیک ہے؟ کنٹرول زیڈ کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں، لے آؤٹ پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، آٹو فٹ۔ آٹو فٹ کی سے کہتے ہیں، آٹو فٹ پر کلک کر کے ہمارے پاس 3 یہاں پر آپشن موجود ہے، آٹو فٹ کانٹینٹس، آٹو فٹ ونڈو اینڈ فکسڈ کلم width، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیا ہے، دیکھو فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر کلک کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کلک کیا، ہم نے آٹو فٹ کانٹینٹس کو اپلائی کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ٹیبل ہے نا ہمارے پاس اس طرح شرنک ہو جائے گا، اور ہم نے کلک یہاں پر کیا تھا، ہم یہاں پر فار ایگزامپل ڈیٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر کچھ لکھائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری لکھائی کے مطابق جو ہے نا ٹیبل جو ہے نا width
जो है ना ज़्यादा होती जाएगी कलम की, ठीक है। देखो हम जितना भी टेक्स्ट यहाँ पर डालते हैं ना, ऐड करते हैं, तो ये टेबल इतना ही जो है ना इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी इस कलम की, ठीक है। अब इसका जो है ना फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा इसका ये है कि हमारे पास जो है ना डेटा के मुताबिक कलम की विड्थ होगी, ठीक ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, बैक स्पेस से हम इसे हटा देते हैं, ठीक है, हमने रिमूव किया, ठीक है। अब ऑटो फिट का ये फंक्शन है, ठीक है, ऑटो फिट कंटेंट्स का ये फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हम इसे कंट्रोल Z कर देते हैं। ओ यार, हमारे पास ये टेबल आ चुका है। ये टेबल तुम सोच रहे होंगे कि ये टेबल किस तरह आ गया। हमने जो है ना कंट्रोल वाई को प्रेस किया, रीडो किया, ठीक है, रीडो, कंट्रोल वाई को प्रेस करके रीडो किए। अच्छा जी, हमारे पास अब अगला ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, तो हमने जो है ना आपको बता दिया। अब ऑटो फिट कंटेंट भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब ऑटो फिट विंडो का ये मतलब है, ये जो टेबल है ना ये इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक क्या करके टेबल तुम्हारे पास उसी तरह है, ठीक है। लेकिन आप जब डेटा इंटर कर देते हैं ना, तो फिर हम हमारे पास जो है ना ऑटो फिट हो जाता है, ठीक है। ये टेबल हमारे पास ऑटो फिट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। हम बैक स्पेस लेते हैं, हमारे पास डेटा क्लियर हो गया। अब ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट विंडो में जो है ना ये फ़र्क है कि आपने इस पर क्लिक करके तुम्हारे पास ये जो टेबल है ये स्ट्रिंग हो जाएगा इस तरह, और डेटा इंटर करके तुम्हारे पास इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑटो फिट विंडो का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास टेबल इसी तरह ही रहेगा, लेकिन आप जैसे ही ये डेटा इंटर कर देते हैं यहाँ पर और जो कुछ टेक्स्ट लिखाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, टेबल की जो है ना साइज़ उसी तरह होगा और ऑटो फिट भी होगा। तुम्हारे पास ये जो कलम होगी वो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी और टेक्स्ट के साथ जाएगी, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कलम विड्थ। फिक्स्ड कलम का मतलब ये होता है फिक्स्ड कलम विड्थ, कि आपने इसको क्लिक करके यहाँ पर आप जो है ना डेटा इंटर कर देते हैं, तो ये कलम है जो है ना वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी और ये नहीं जाएगा किसी भी तरफ, ठीक है। और ये जो है ना नीचे ही आएगा, तुम्हारा जो टेक्स्ट होता है ना वो नीचे आएगा, ठीक है। इसका मतलब टेबल की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होगी, ठीक है, कलम की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होगी और नीचे जो है ना रो जाएगी, ठीक है। इसका ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये हाइट, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्लिक किया है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है ना हाइट को बढ़ा देते हैं, तो इस तरह जो है ना इस पूरी रो को जो है ना पूरी रो का जो साइज़ है ना वो किस तरह होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। देखो ये साइज़ बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ से हम साइज़ को जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो है ना विड्थ, विड्थ का मतलब ये है कि इस तरह जो है ना टेबल का साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये जो कॉलम है ना, पहला कॉलम हमने यहाँ पर क्लिक किया था, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ से जो है ना हम इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम चाहें वो उतना ही डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो हमने इतना डिक्रीज़ किया, ये देखो हमने इतना इंक्रीज़ किया, ठीक है, ठीक है। अब ये फंक्शन शायद आप लोग जान चुके होंगे। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने इस तरह किया है कि हमने इसकी साइज़ इंक्रीज़ की, इतना साइज़ इंक्रीज़ किया। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पर क्लिक करके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो टेबल की साइज़ है ना ये जो है ना सबसे बड़ा सेल है, ठीक है, और ये जो है ना बाकी नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जो साइज़ है ना ये साइज़ इस सारे से सेल्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करके ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तकसीम हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसे दोबारा जो है ना इंक्रीज कर देते हैं। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करके तो हमारे पास जो है ना सारे सेल जो है ना हाँ उस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक करके ये विड्थ है, कलम विड्थ है, ठीक है। अब इसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हमने इसको इंक्रीज़ किया। अब डिस्ट्रीब्यूट कलम पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये जितने भी कलम है इस पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये साइज़ तकसीम हो जाएगा ये साइज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम और भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
देखो हमने इतना इंक्रीज़ किया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये देखो इतने जो है ना अपन मतलब इतना साइज इंक्रीज़ हो गया, सारे सारे सेल्स पर जो है ना ये अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इस तरह कर देते हैं कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। हमने ये अप्लाई की, ठीक है। ये जो है ना THE लिखा हमने। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आ जाते हैं अलाइनमेंट के सेक्शन में, ठीक है। हमने ये अप्लाई की तो ये जो दी है ना ये दरमियान में बिल्कुल सेंटर में आ गया, सेंटर मतलब यहाँ पर ऊपर आ गया, ठीक है, दरमियान से। अब इस पर अप्लाई की, देखो साइड पर आ गया, इस पर क्लिक करके इस कर्नर तक आ गया, इस पर क्लिक करके देखो यहाँ पर मिडिल में आ गया, लेकिन जो है ना लेफ़्ट साइड में आ गया। और जो है ना इस पर क्लिक करके हमारे बिल्कुल सेंटर में आ गया है, ठीक है। इस पर क्लिक करके जो है ना हमारे पास राइट जो है ना मिडिल में आ गया। इस पर क्लिक करके ये जो है ना हमारे पास डाउन कर्नर में आ गया लेफ़्ट की तरफ। इस पर क्लिक करके इस तरह हो गया, और इस पर क्लिक करके इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, ठीक है, अलाइनमेंट का। अब ये टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है? टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि हम देखो हम टेक्स्ट की बिल्कुल डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल डायरेक्शन जो है ना चेंज कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन। हम इसे सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अभी इसको इंक्रीज़ किया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास पूरे टेबल का जो है साइज़ इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, सेल मार्जिन। और यहाँ पर फिर जो है ना हमने ये इंक्रीज़ किया, देखो हमारे पास फिर साइज़ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सेल मार्जिन, और ये देखो बटन। बटन का मतलब ये भी होता है, ये होता है कि ये भी हमारे पास क्या कर देता है, सारा टेबल का जो है ना साइज़ इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। ये देखो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, इंक्रीज़ होता जा रहा है। हम इसे डिक्रीज़ कर देते हैं तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, इस तरह। और सेल मार्जिन में यहाँ पर आकर ये देखो क्या है, यहाँ पर लेफ़्ट। लेफ़्ट का आपने फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ना यहाँ पर क्लिक किया है, माउस का कर्सर जो है ना वो यहाँ पर है। अब टेक्स्ट का कर्सर अब यहीं पर है। आपने जो है ना सेल मार्जिन पर आकर इसको क्लिक करके इसको जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ा के ये देखो हमारे पास यहाँ तक आ गया है, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर आ गया है। अब हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं और इसी पर क्लिक करके ये देखो हमने वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। इस पर क्लिक करके ये देखो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपकी जो लिखाई होगी वो यहाँ से शुरू हो गया अभी, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है जी। हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करके ये देखो हमारे पास क्या है, राइट। राइट का मतलब यह होता है कि हम जब इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं ना तो फिर हमारे पास ये जो टेक्स्ट की हमने वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा। ये उल्टी पुल्टी है थोड़ा सा, ठीक है। हमने इसकी दोबारा जो है ना वैल्यू जो है ना बढ़ा दी, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये और भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमने जो है ना इसकी पूरी वैल्यू बढ़ा दी और ये देखो बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और शायद इतना ही आज, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर हमसे रह गई है, ये देखो ये क्या है, अलाउइंग स्पेस बिटवीन सेल्स। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल एन से जो है ना न्यू विंडो खोलते हैं। कंट्रोल एन से जो है ना तुम्हारे पास न्यू विंडो आ जाएगी, ठीक है। तुम्हारे पास बिल्कुल जो कुछ भी आपने बनाया होगा वो सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। चला नहीं जाता, देखो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो है ना तुम्हारे पास जो इंटरफेस आ जाएगा तो उसमें नहीं होगा, फर्स्ट पेज सिर्फ होगा, ठीक है। हम इस तरह करेंगे कि जो है ना हम टेबल पर आकर ये हमने टेबल बना ली, ठीक है। इसकी थोड़ी सी जो है हम साइज इंक्रीज़ कर देते हैं। ये देखो अब जो है ना पर हम लेआउट पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करके, और फिर यहाँ पर क्लिक करके जो है ना हम यहाँ पर जब वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये जो है ना हमारे पास इस तरह बक्स शेप्स के जो है ना हो जाएंगे। हमारे पास ज़्यादा बक्स जो है ना अब बक्स टाइप हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास जो टेबल था वो बक्स शेप में जो है ना अब चेंज हो चुका है, ठीक है। हर सेल में जो है ना अब स्पेस मौजूद है, हर सेल में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है ना वैल्यू बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जी वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब स्पेस का वैल्यू जी बढ़ जाएगा।
اب اس کا فنکشن یہ ہے، ٹھیک ہے. ہم اس پر دوبارہ کلک کر کے اسے ان چیک کر دیتے ہیں. اس پر کلک کر تو تم یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس پھر وہی ٹیبل بن گیا جو ہمارے پاس پہلے تھا، ٹھیک ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور کچھ فائدہ حاصل کیا ہو تو آپ خود ہی جانتے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اور خدا حافظ.